हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। अभी हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। सो इसमें सब टॉपिक है IMF's ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो द रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड सेमी एनुअली assessed the impact of geopolitical risk on global financial stability. According to the report, global geopolitical risks remain elevated, raising concern about their potential impact on macro financial stability. So release कौन करता है? IMF, Global Financial Stability Report. कैसे रिलीज होती है? सेमी एनुअली। जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या क्या है? मल्टीपल थ्रेट्स टू सप्लाई चेन्स, tectonic shift in power, economic centers and trade, a fragmented tax environment, demographic, technological, cultural pressures on workforces. ठीक है, तो मल्टीपल थ्रेड्स हो रहा है सप्लाई चेन को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेवलरीज हो रही है, जियोपॉलिटिकल रेवलरीज हो रही है। टेक्टोनिक शिफ्ट इन पावर, इकोनॉमिक सेंटर्स, क्योंकि न्यू ट्रेड अलाइंसेस बन रहे हैं, अलग अलग पावर डायनामिक्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। अ फ्रेगमेंटेड टैक्स एनवायरनमेंट means minimal global tax is becoming adopted by many countries, while others are withdrawing from multilateral tax policy. और demographic, technological and cultural से मतलब है aging population, mass retirement, failing birth rates, cultural wars and others. ठीक है, implication क्या है इन risk के? Sovereign risk, increased military spending, economic downturns raise public debt to GDP ratios, escalating fiscal sustainability. ठीक है, फाइनेंशियल कंटेजन क्या है? जियोपॉलिटिकल रिस्क कैन स्पिल ओवर टू अदर इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड एंड फाइनेंशियल लिंकेजेस। ऑब्वियसली कहीं एक जगह पे प्रॉब्लम होगी, एंड वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल एरा। किसी एक कंट्री में प्रॉब्लम होगा तो अदर कंट्रीज विल ऑटोमेटिकली बी अफेक्टेड बाय दैट। मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, increased geopolitical risk can lead to economic disruptions such as supply chain disruption and capital flow reversals. Investor confidence, geopolitical risk generally lower investor confidence. अगर इतना सारा टर्मोइल होगा, इतना प्रॉब्लम्स होंगे, ट्रेड वॉर्स होगा, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनका भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। For example, the US-China trade war significantly impacted stock prices in both economies. Alright, so key policy recommendation for geopolitical risk. करना क्या चाहिए to solve this out? Enhanced financial oversight. Integrate country-specific geopolitical risk into financial institution supervision. Risk हैं, country by country problems हैं, तो हम अगर अपनी कोई पॉलिसी बनाएं या उनको सुपरवाइज करें तो उसमें पहले ही उसको सोच के रखें, मान के रखें। अगर इंडिया का किसी के साथ प्रॉब्लम होने वाला है, देन कीप इन माइंड दैट थिंग कि हो सकता है। सेम अगर चाइना US ट्रेड वॉर हो रहा है, तो बिफोर फाइनलाइजिंग एनी काइंड ऑफ पॉलिसी हमें उसे माइंड में रखना चाहिए कि वो हो रहा है। स्ट्रेंथन कैपिटल बफर्स, एक एडिक्वेट कैपिटल और लिक्विडिटी मेंटेन करके रखें। डीपन फाइनेंशियल मार्केट्स विद रोबस्ट रेगुलेशंस, अपने रेगुलेशंस को और ज़्यादा टाइट करें। मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक बफर्स, एडिक्वेट फिस्कल स्पेस हो हमारे पास में, एंड इंटरनेशनल रिजर्व्स आर क्रूशियल। इम्प्रूव क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस, सो ओवरऑल अगर कोई क्राइसिस है, अगर उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं, देन वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन। ओके, नेक्स्ट इज ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025 released by WTO, World Trade Organization. Major finding है इसके अंडर में, under current condition the volume of the world merchandise trade is likely to fall by 0.2% in 2025, which is not a good sign. So the decline is expected to be particularly steep in North America, where exports are forecasted to drop by 12.6%. Severe downside risks exist, including the application of reciprocal tariffs and broader spillover of policy uncertainty. So because of the current president of USA, reciprocal tariff war जो चल रहा है and policy uncertainty है, उसकी वजह से this will be the effect, around 12.6% drop. So the report contains for the first time a forecast for service trade to complement its projections for merchandise trade. The volume of service trade is forecasted to grow by 4.0, that is 4% in 2025. तो service का it will grow and other things will drop.
Next is UNCTAD UNCTAD releases Technology and Innovation Report 2025. रिपोर्ट में है क्या? इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर इंश्योरिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव्स इंक्लूसिव ग्रोथ रादर देन डीपनिंग डिवाइड. Findings are potential of AI. Globally, AI is expected to reach 4.8 trillion 3033 तक. Impact होगा, AI could impact 40% jobs worldwide, offering productivity gains along with concerns regarding the automation and job displacement. Market dominance at national and corporate levels. 40% of global corporate R&D spending stems from 100 firms. कहाँ से? Mainly US and China. क्योंकि US में ही it accounts for 70% of the global AI private investment. Now what is way forward? इसे डरने का ज़रूरत नहीं है. हमको करना क्या है? We have to include AI. So what are the way forwards on inclusive AI? Promoting AI adoption in developing countries by redesigning AI solutions around locally available digital infrastructure, lowering the skill barriers, building international partnerships. Adopting worker-centric approach. Job workflows and tasks should be rearranged to integrate AI effectively. See, जब कंप्यूटर पहली बार आए थे तब भी there was a threat that computer will take over the jobs of human beings, but ऐसा नहीं हुआ. We adapt. हम उसको जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है we adopt that into our work culture. So same we have to go with the AI also. गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? असेसमेंट ऑफ द नेशनल AI कैपेसिटीज अक्रॉस 3 लेवरेज पॉइंट्स ऑफ द, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा में एंड स्किल्स में. अब इस पूरे में इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग्स क्या क्या हैं? रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स, इंडिया 36th रैंक पे. लार्ज टैलेंट पूल्स, अराउंड 30 मिलियन गिटहब्स, प्लेटफॉर्म फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेवलपर्स. कब? 2023 में. गवर्नमेंट मेजर्स हैं इंडिया AI मिशन 2024 फॉर इंक्लूसिव AI इकोसिस्टम. एंड केस स्टडी, टाटा स्टील इम्प्लीमेंटेड अराउंड 250 मशीन लर्निंग सिस्टम्स. कितने? 250. ठीक है. नेक्स्ट सब टॉपिक इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ISA. So India secured an uncontested position in the United Nations Intergovernmental Working Group of Experts ISAR for 25 से 27. अब ISAR है क्या? It's an UN Global Forum for Policymaker, Regulators, Standard Setters and Lead Experts in the area of Enterprise Accounting and Reporting. इसका मैंडेट है to assist member states improving the quality, international compatibility of financial reporting and non-financial disclosure, जैसे कि environmental issues पे, corporate governance and corporate social responsibilities. इसका मिशन है to facilitate investment, development, economic stability by promoting good practices in corporate transparency and accounting through policy frameworks. ठीक है. सेशन इसका होता है, it holds its annual session in Geneva to address emerging issues in enterprise accounting and reporting. Membership में है, it allows for 34 formal members to serve 3-year terms. 9 African, 7 Asian, 6 Latin American, 3 Eastern European and 9 Western European and other states. ठीक है. Next is Bombay Stock Exchange. Year 2025 marks the 150 years of the BSE. Established as the Native Share and Stock Broker Association का 1875 में. एशिया का फर्स्ट एंड वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. 2017 में BSE became the first listed stock exchange of India. BSE provides an efficient and transparent market for trading in equity, currencies, debt instruments, derivatives, mutual funds. रेगुलेशन इसका SEBI के अंडर में. SEBI है स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर SEBI एक्ट 1992. Cape Town Convention and Protocol. Rajya Sabha passed the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025, aiming to align it as per the Cape Town Convention. Cape Town Convention क्या है? Convention on International Interest in Mobile Equipments and Protocols on matters specific to aircraft equipment. Now, Cape Town Convention and Protocol का aim है to standardize transaction involving movable property, पर्टिकुलरली हाई वैल्यू एसेट, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, आपका इंजन हो गया, हेलीकॉप्टर्स हो गए, टू इंश्योर क्रेडिटर्स कैन इन्फोर्स देयर राइट्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट.
अडॉप्शन इसका था जॉइंटली बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिड्रॉइट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। 65 पार्टीज हैं 2016 तक, इंडिया ने साइन किया था 2008 में। नैनो सल्फर, TERI scientists have developed nano sulfur which reportedly increase mustard yield by 30 to 40%. Huge. DMH11 is a genetically modified mustard. It is completely green product है, uses biological agents like plant promoting bacteria that secrete enzymes and metabolites. So this makes it different from other nano fertilizers. ठीक है, क्योंकि other fertilizers are not totally green product such as nano urea and nano ammonium phosphate. Nano sulfur has antibacterial and insecticidal properties. Benefit क्या क्या है इसका? Act as plant growth promoter, enhancing plant stress resistance and improving the nutritional quality of plants. Next topic is saline aquaculture hubs. Union government is pushing for saline aquaculture hubs in कहाँ पे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान and यूपी. इसका मतलब है use of saline affected lands often suitable for traditional agriculture for inland saline aquaculture. Aquaculture होता क्या है? is the farming of aquatic organisms जिसमें fish भी है, mollusk हैं, crustaceans हैं, आपके aquatic plants हैं for enhancing production. ठीक है, जो भी लैंड था इन चारों स्टेट्स में जो सलाइन अफेक्टेड हो गया था, अब हम उन्हें यूज कर सकते हैं इनलैंड सलाइन एक्वाकल्चर की तरीके से। सिग्निफिकेंस क्या है? जनरेट एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, और जो सलाइन अफेक्टेड जो है एरिया वो एज इट इज अभी किसी यूज में आता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पोटेंशियल इन इंडिया ओनली 2608 हेक्टेयर्स ऑफ द 58,000, कितना 58,000 हेक्टेयर्स है हमारे पास में, लेकिन उसमें से केवल 2608 4 स्टेट्स में अभी यूटिलाइज हो रहा है। इंडिया स्टैंड्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कल्चर्ड श्रिम्प ग्लोबली, अर्निंग 65% ऑफ इट्स सी फूड एक्सपोर्ट वैल्यू फ्रॉम श्रिम्प अलोन, विच कैन बी बेटर रियलाइज थ्रू सलाइन एक्वाकल्चर। अभी भी 65% है हमारा पूरा एक्सपोर्ट में, लेकिन हम इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, किसके थ्रू? सलाइन एक्वाकल्चर। ठीक है, की चैलेंजेस देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी, रीजनल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल इन बांग्लादेश, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, प्रॉक्सिमिटी टू ड्रग स्मगलिंग जोन्स लाइक गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, अब मेजर्स क्या हैं टू टैप द पोटेंशियल ऑफ सलाइन एक्वाकल्चर? पॉलिसी रिफॉर्म करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग द एरिया लिमिट फ्रॉम 2 हेक्टेयर्स टू 5 हेक्टेयर्स, अ नेशनल लेवल कमिटी टू प्रिपेयर अ रोड मैप, इम्प्रूव्ड मार्केटिंग चैनल एंड डिसमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो भी जैसे कि स्टेट्स टू लेवरेज कृषि विज्ञान केंद्र टू आइडेंटिफाई न्यू एरियाज फॉर सलाइन कल्चर एंड कंडक्ट आउटरीच बेस्ड रिसर्च। ओके, तो इकोनॉमी वाला पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड हियर। नाउ विल कंटिन्यू विद सिक्योरिटी। Under security, the first is terrorism in Jammu and Kashmir. The Resistance Front, that is TRF, an offshoot of Pakistan-based terrorist organization Lashkar-e-Taiba, killed 26 tourists in Baisaran Valley in Pahalgam, Jammu and Kashmir. So as we all know, Pahalgam में अटैक हुआ था, where 26 tourists have been shot down. So in response, India took several measures. सस्पेंडिंग इंडस वाटर ट्रीटी, सबसे पहले हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था। क्लोजिंग द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट अटारी, स्क्रैपिंग साक वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, तो साक के अंडर कुछ ऐसे लोग होते थे जो वीज़ा लेके हमारे यहाँ आ सकते थे, हमने उसको भी स्क्रैप कर दिया। ओके, इंडिया ऑल्सो लॉन्च्ड प्रिसाइज एयर स्ट्राइक एट 9 लोकेशंस इनसाइड पाकिस्तान एंड POJK अंडर ऑपरेशन सिंदूर। These strikes have targeted strongholds of various terrorist organizations, जिसमें LET के भी थे, जैश ए मोहम्मद एंड नॉन स्टेट, जो अलग अलग नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं वहाँ पे, जो एज अ प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान काम करते हैं एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। सो दिस इज द एरिया।
ओके, टाइमलाइन क्या था इसका, कश्मीर इंसर्जेंसी का, कब से कब तक हम उसको ट्रेस कर सकते हैं? सी, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग दैट, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग इट टाइम एंड अगेन अगेन, तो कभी तो हमको उसमें एक्ट करना ही था. फर्स्ट टाइम इंडो पाकिस्तान वॉर 1947-48. सेकेंड इज UN ceasefire line 1949. थर्ड टाइम इंडो पाक वॉर 65. LOC स्टेब्लिश हुआ हमारा 72 के टाइम पे. देन कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ने लगा 89 के टाइम पे. कारगिल वॉर हुआ 99. उरी अटैक एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए 2016 एंड पुलवामा अटैक अभी हुआ 2019 में. देन रिसेंट इज पहलगाम टूरिस्ट अटैक. इसके बीच में भी मोरलेस कुछ नए पुराने सब मिला के दे हैव we have a history of around 20,000 people they have been killed by Pakistan terrorism. Recent trend in Kashmir terrorism, as per Ministry of Home Affairs Annual Report 23-24, a continuous decline हुआ है in terrorist and militant attacks. Also the economic activities related to tourism and other infrastructure development, देखो जितना टेररिज्म कम हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, उसी के पैरेलल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है एंड टूरिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं. एक्सपर्ट्स बिलीव दैट दीज रिसेंट अटैक वर कैरिड आउट टू डीरेल द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड क्रिएट कम्युनल डिसहार्मनी. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दे वांटेड. फैक्टर्स बिहाइंड टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर. सो बेसिकली होता ही क्यों है इन दैट पार्ट ऑफ आवर कंट्री? सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्सेस. सिंस ये आपका बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है बिकॉज दे नो एक्चुअल वॉर में वो स्टैंड नहीं कर सकते हैं, सो व्हाट दे प्रेफर इज प्रॉक्सी वॉर. पाकिस्तान स्टेट एजेंसीज प्रोवाइड ट्रेनिंग, आर्म्स, सेफ हेवंस एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू ग्रुप्स लाइक LET, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन एंड अदर्स. जो अभी रिसेंट अटैक हुआ है वो TRF के थ्रू हुआ है. पाकिस्तान यूजेस दीज प्रॉक्सीज अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉर. इंटरनेशनल नॉन कंसेंसस. अब देखो, एक होता है कि पूरा वर्ल्ड मिलके किसी एक चीज़ के अगेंस्ट में लड़ रहा है. हालांकि टेररिज्म इज़ नॉट अ लोकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इट इज़ वाइडली कंसिडर्ड एंड एस्टेब्लिश्ड है कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट स्टिल देयर आर फ्यू कंट्रीज जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को. लाइक चाइना ऑफन यूजेज वीटो टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान बेस्ड नॉन एक्टर्स लाइक मसूद अजहर फ्रॉम बीइंग लिस्टेड एज टेररिस्ट इन UNSC. ग्लोबल आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस. रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजीज जो हैं जैसे कि ISIS, ये पूरा इनका नेटवर्क फैला हुआ है बिटवीन LET एंड ग्रुप लाइक हमास विच फ्यूल देयर रेडिकलाइजेशन. पोरस बॉर्डर है, एज आई सेड, हमारा जो बॉर्डर है वो इतना अच्छे से सिक्योर्ड नहीं है अलोंग द LOC, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन इज ईजिली अलाउड है. ना ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स. व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स? रेडिकलाइजेशन है, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, यूट्यूब, कोई भी किसी को भी रेडिकलाइज कर सकता है बहुत इजीली. पॉलिटिकल एलिनेशन है, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस रहे हैं जैसे कि यूज ऑफ आसपा. इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही थी शुरू से लेके, तो जो अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड यूथ है, इट इज़ वेरी ईजी टू रेडिकलाइज दोज पीपल. Overground workers, they play a significant role in sustaining militancy through fund management, recruitment, propaganda and misinformation. और टेरर फाइनेंस, जैसे कि जो आपके पाकिस्तान है जो टेरर फाइनेंस करता है, उन्हीं में सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं कश्मीर में. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, दुख्तरान मिलात है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है. तो ये अपना जो पैसा है पाकिस्तान से आने वाला, इसको चैनलाइज करते हैं एज अ हवाला मनी, ठीक है, और लोकल मिलिटेंट्स को फंड करते हैं. चैलेंजेस क्या है इन टैकलिंग टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर? प्रॉब्लम्स हमको पता है, लेकिन हम उसको टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं इफेक्टिवली? हाइब्रिड टेररिस्ट एंड वर्चुअल टेररिस्ट आउटफिट. हाइब्रिड मोड पे काम करते हैं, वर्चुअल मोड में काम करते हैं, तो उन्हें ट्रैक करना इज कंपैरेटिवली टफ. पोरस बॉर्डर है, सबसे पहले तो LOC को हमको अच्छी तरीके से, इतना डिफ़िकल्ट ट्रेन है वहाँ पे, तो उसको अच्छे से क्लोज करना इज़ नॉट दैट ईजी. तो उसको पहले हमें अच्छे से क्लोज करना पड़ेगा. वी हैव टू वर्क ऑन आवर साइड ऑफ द प्रॉब्लम. पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, लाइक सोशल मीडिया का यूज़ करके आप यहीं वहीं बैठे बैठे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला सकते हैं. इंटेलिजेंस का गैप है,
फ्रेगमेंटेड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल एजेंसीज, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, अभी ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कंट्रीज के पास आ रहा है, टेररिस्ट दे आर ऑल्सो यूजिंग ड्रोन्स, encrypted apps, AI generated propaganda, advanced weaponry and changing tactics. अभी कोई अगर एक तरीके से किलिंग करते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई दैट, उनके टैक्टिक्स जो हैं चेंज होते रहते हैं. लार्ज स्केल अटैक से टारगेटेड किलिंग्स पे, अटैक ऑन सॉफ्ट टारगेट जैसे टूरिस्ट को अटैक कर दिया, माइनॉरिटीज को अटैक कर दिया. So what initiatives we have taken to counter to tackle terrorism? सबसे पहले क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट ग्रुप्स एंड देयर इकोसिस्टम. हमने क्या किया है आफ्टर 2016, उनको डायरेक्ट अटैक, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लाइक हॉट परस्यू एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स, पुलवामा अटैक्स, ऑपरेशन सिंदूर. सो ये क्या है, बेसिकली क्रैकडाउन ऑन द होल सिस्टम. सिक्योरिटी में ऑपरेशन ऑल आउट, मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर बेटर इंटेलिजेंस. इंडिया बैंड जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर इन 2019 एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस. ठीक है. अच्छा, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का अगर आपको एग्जांपल देना है, ऑपरेशन सद्भावना. टैकलिंग क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन, स्मार्ट बॉर्डर टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय कर रहे हैं अपने एलओसी के आसपास. लेजर फेंसिंग, ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल स्टेप्स. अब ये तो हो गया आप क्या कर रहे हैं उनको दूर रखने के लिए, लेकिन इन जो हमारे इंटरनल डिस्टर्बेंस जो हुआ है उसको आप ठीक कैसे करेंगे. Programs like Himayat, skill development, Umeed, women's empowerment and policies promoting tourism and handicraft. Also, large scale infrastructure बनाना है हमको, जैसे कि चिनाब ब्रिज, running वंदे भारत trains to help in bringing investment and rise of tourism industry. Political, abrogation of Article 370, delimitation exercises for a representative government and efforts to restore democratic process. Last is diplomatic. So what we are doing, we are telling everyone at the global level to see the actions of Pakistan related terrorism. ठीक है. वे अहेड, आगे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस इंटेलिजेंस को और स्ट्रेंथन करें. ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा अटैक प्लान हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है. तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन रखना है हमको, AI ड्रिवन एनालिटिक्स रखने हैं, ड्रोन थ्रेट से बचना है. ठीक है. देन बॉर्डर सिक्योरिटी, जो इतना उस टेरेन है जो जिसको हमने अभी तक कवर नहीं किया है, हमें उसे अच्छे से कवर करना है. इम्प्रूविंग इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्मी, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड JNK पुलिस. डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाने हैं हमारे खुद के सोसाइटी में, खुद के स्टेट में. जो जो रेडिकलाइज हो रहा है उसको आप एजुकेशन दें, आप उसको स्पोर्ट्स दें, आप उसको कल्चरल इंटीग्रेशन करवाएं जिससे डी रेडिकलाइजेशन हो. ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद लोकल कम्युनिटी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंटरनेशनल प्रेशर. इंटरनेशनल प्रेशर आप कैसे करेंगे, UNSC में जाएंगे, FATF में जाएंगे, एंड जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो स्पेशली सपोर्ट कर सकते हैं हमको सेम कॉज के लिए, सऊदी अरेबिया एंड UAE. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट. इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट हैव सर्ज टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 23,622,000 अप्रॉक्स $2.7 billion इन फाइनेंशियल ईयर 24-25. ठीक है. सेक्टर कंट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर डिफेंस सेक्टर contributed around 15,000 and 8,000. DPSUs have shown significant increase of 42.85%. ट्रेंड क्या है, 5-10 साल से 15 से 25 तक इंडिया हैज क्यूमुलेटिवली एक्सपोर्टेड डिफेंस गुड्स एंड इक्विपमेंट वर्थ ₹1,09,000 crore. टारगेट, इंडिया एम्स टू इंक्रीज इट डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 तक. एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इंडिया नाउ एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स टू ओवर 100 कंट्रीज जिसमें US, फ्रांस एंड अर्मेनिया. एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो में हमारे इंक्लूड मिसाइल सिस्टम है जैसे कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, advanced stout artillery gun, naval platforms such as fast attack craft and offshore patrol vessels, aerospace assets like LCA light combat aircraft, Tejas and advanced light helicopters. So ये सारा हमारा पोर्टफोलियो है जिसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. सी, फिलीपींस किस में इंटरेस्टेड है हमारे, ब्रह्मोस में, अर्मेनिया आकाश में, मॉरिशस हमारे ALH
and USA part of aircraft and helicopter. France में software and electronic equipments. Initiative for improving defense export. क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने? IDEX, Innovation for Defense Excellence. Defense Industrial Corridor, Ease of Doing Business and Defense Sector. Simplification of Industrial License Procedure है and Simplification of SOP for Grant of Export Authorization. लिबरलाइज किया है FDI पॉलिसीज को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एंड सृजन पोर्टल. सृजन पोर्टल क्या है? वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वेंडर्स टू टेक अप आइटम्स दैट कैन बी टेकन फॉर इंडिजिनेशन. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? अब इंपोर्ट रिलायंस बहुत ज़्यादा है हमारा. कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंजन, एवियोनिक्स, सेंसर्स. लैक ऑफ R&D, हमारा बहुत कम अमाउंट है GDP का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है. कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स. अब वी आर नॉट द ओनली प्लेयर, हम लोग अभी अभी इमर्ज हुए हैं, उससे पहले से ग्लोबल प्लेयर्स हैं जैसे US, रशिया, फ्रांस. ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हैं. अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए? वी शुड प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ कंप्लीट डिफेंस सिस्टम. देन forging long-term partnership with upcoming defense hubs. Enlarge export horizons. Focus on supplying components and subsystems. तो पोर्टफोलियो भी हमें बढ़ाना चाहिए. ग्लोबली हमें ऐसे कंपोनेंट्स बनाने हैं जो कॉम्पिटिटिव हों. हमें अपने पॉलिसीज़ में भी शिफ्ट करना होगा. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन. So United Nations Officer for Disarmament Affairs celebrated 50th anniversary of Biological Weapon Convention. अब ये है क्या? फॉर्मली इसको बोलते थे द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, बैक्टीरियोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन्स ऑन देयर डिस्ट्रक्शन. पहले इसका ये नाम था. जेनेसिस इसका नेगोशिएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड विद इन 18 नेशन कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑफ डिसआर्मामेंट फ्रॉम 1969 until 71. सिग्नेचर के लिए ओपन हुआ था 72 में और फोर्स में आया था 75 में. मेंबरशिप में ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है. इंडिया ने साइन भी किया था, रेटिफाई भी किया था 74 में. एंड 4 सिग्नेटरी स्टेट्स: इजिप्ट, हैती, सोमालिया, सीरियन अरब रिपब्लिक. स्टेट पार्टीज मीट अप्रोक्सीमेटली 5 साल में एक बार मिलते हैं. State party to BWC have strived to ensure that convention remains relevant and effective despite the change in science and technology. So basically आप बायोलॉजिकल वेपन्स का स्टॉक पाइलिंग ना करके रखें, उसके लिए इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था. So key facts about first multilateral disarmament treaty है banning on entire categories of weapon of mass destruction. इफेक्टिवली किसको प्रोहिबिट करती है? प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग ऑफ बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन्स. सप्लीमेंट करती है किसको? 1925 की जेनेवा प्रोटोकॉल को. इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट यूनिट टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू मीटिंग्स एग्रीड बाय रिव्यू कॉन्फ्रेंस. कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कन्वेंशन. 5 ऐसे स्टेट्स हैं, इजराइल, चाद, जिबूती, एरिट्रिया, किरिबाती, जिन्होंने नीदर साइंड नॉर एक्सीडेड. ठीक है. बायोलॉजिकल वेपन्स होते क्या हैं? वेपन्स दैट डिसेमिनेट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, प्रोयंस एंड रिकेट्साइड और टॉक्सिन्स, पॉइजन्स डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड, जिससे कि आप ह्यूमंस को डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं. आपको बंदूकें, वेपन्स, आपको मिसाइल्स ये सब चलाने का ज़रूरत ही नहीं है. आप एक बायोलॉजिकल वेपन छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा पॉपुलेशन वाइप आउट. Historical biological weapons programs have included efforts to produce aflatoxin, anthrax, botulinum toxin, foot and mouth disease, glanders, plague, Q fever, rice blast ricin, Rocky Mountain spotted fever, smallpox and others. United Nations Office for Disarmament Affairs, UNODA. अभी ये है क्या? Established in 1998 as the Department of Disarmament. It provides substantive and organizational support for norm setting in the area of disarmament through General Assembly and its first committee conference on disarmament.
फंक्शन क्या है? फोस्टर डिसआर्मामेंट मेजर, प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन, सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक क्या क्या किया है BWC ने? मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली engineered organism of cell rules 1989, weapons of mass destruction and their delivery systems act 2005, special chemicals organism, materials, equipments and technologies। ये क्या है? SCOMET list is India's national export control list of dual use item। India and France jointly approved establishing a database to facilitate assistance under Article 7 of BWC। Now, what are the challenges? Lack of verification measures। वेरीफाई कैसे करें? ड्यूअल यूज नेचर ऑफ बायोसाइंस, कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ड्यूअल यूज होते हैं, जिसको आप वेपन की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज आप फार्मेसी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। लैक ऑफ लीगली एनफोर्सेबल डेटा कलेक्टिंग प्रोविजंस, लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, insufficient national implementation। Now what are the way forward? Implement modular incremental approach for verification। अब जो प्रॉब्लम थी उसी का आप वे फॉरवर्ड निकालेंगे। Expand permanent institutional support, universalize the confidence building measures submission। जैसे आज के डेट में न्यूक्लियर भी जो कंट्रीज हैं वो आपस में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते ही हैं। Every year what they do, they share their nuclear data with each other। इससे होता क्या है कि आपको पता होता है सामने वाले के पास इतना है, आप एक डेटरेंस क्रिएट होता है। ठीक है। एड्रेस नॉन स्टेट एक्टर थ्रेट्स। ठीक है। नेक्स्ट आर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड, VVP सेकंड। कैबिनेट ने अप्रूव किया है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। It builds upon the foundation laid by first phase VVP1, which targeted border villages along the north frontier। This initiative highlights India's commitment to Viksit Bharat 2047, जिसमें क्या क्या होगा? Ensuring safe, secure and self-sufficient land borders। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल फंडिंग है। VVP1 में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड था। कवरेज है स्ट्रेटेजिक विलेज अलोंग इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स अक्रॉस 17 स्टेट्स एंड यूटीज, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स भी कवर होंगे। ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन, प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, कंट्रोल ट्रांस बॉर्डर क्राइम एंड इंटीग्रेट पॉपुलेशन एज आइज एंड ईयर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। टेन्योर फाइनेंशियल ईयर 25 से 29 तक। की फीचर है इसमें होगा infrastructure development, all weather road connectivity, value chain and livelihood development, welfare schemes convergence, cultural and tourism promotion and PM गति शक्ति। ठीक है। अब बॉर्डर पॉपुलेशन एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता ही क्यों है? सोर्स ऑफ लोकल नॉलेज होता है। कभी भी अगर कोई क्रॉस बॉर्डर कोई एक्टिविटी हो रही है तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा? लोकल्स के थ्रू। लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। रिमोट बॉर्डर विलेजेस सपोर्ट पेट्रोलिंग फोर्सेज विद फूड, शेल्टर एंड लेबर। कई बारी हमारे लॉजिस्टिक में पहुंचने में देर हो सकती है, तो उस टाइम पे जो लोकल पॉपुलेशन है दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। इनफॉर्मल सर्विलियंस, नो वन कैन से कि हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, लोगों आर्मी को या हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज को लगा रखा है। नहीं, वो कौन है? नोमैड्स हैं, शेफर्ड्स हैं। दे यूजुअली एक्ट एज अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर बॉर्डर ट्रांसग्रेशन। रीइंफोर्सिंग टेरिटोरियल क्लेम्स। अब आप देखिए, अभी कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई रहता नहीं है, तो कोई आराम से आके उस एरिया को धीरे धीरे अपने अंडर में लेगा एंड वी वुडंट इवन नो। होता क्या है, अगर हम वहाँ पे पॉपुलेशन को सेटल करते हैं तो जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो हम उनको रीइंफोर्स कर पाते हैं। प्रीवियसली क्या क्या हुआ था? 86-87 में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। 5-6 में मॉडल विलेज इनिशिएटिव आया था। 15 में स्मार्ट मॉडल विलेज डेवलपमेंट आया था। ओके, नेक्स्ट इज I4C, Department of Revenue under the Union Ministry of Finance
issued notification to include Indian Cyber Crime Coordination Center, that is I4C, under section 66 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. ये क्या करेगा? It will help to share and receive information from the Enforcement Directorate and other law enforcement agencies, strengthen करने के लिए countries fights against cyber enabled financial crime. So what is section 66? Enables the director or any other authority specified by the state for necessary action. Sharing of information shall be on the basis of information or material in his possession. So about Indian Cyber Crime Coordination Center, ऑफिशियली बना था 2020 में. इनिशिएटिव है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एक्ट एज द नोडल एजेंसी टू कर्ब साइबर क्राइम. जुलाई 2024 में इसको मेड किया अटैच ऑफिस ऑन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Objective is to provide a framework and ecosystem for law enforcement agencies for dealing with cybercrime in a coordinated and comprehensive manner. Verticals क्या हैं इसके? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है इसके पास में, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट है इसके पास, नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट भी है एंड जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम भी है. ठीक है. नेक्स्ट इज राफेल मैरीन फाइटर जेट्स. सेंटर ने अप्रूव किया था 26 राफेल मैरीन फाइटर जेट का फ्रांस से. These fighter jets will be for the Indian Navy and will be deployed on the country's first indigenous aircraft carrier, that is INS Vikrant. Indian Air Force operates 36 Rafale jets जो हमने पहले अक्वायर किया था. मैन्युफैक्चरिंग इसकी डसॉल एविएशन फ्रेंच कंपनी है. ओमनी रोल कैपेबिलिटीज जिसका मतलब है एबल टू कैरी आउट ऑल कॉम्बैट एविएशन मिशन सच एज एयर डिफेंस कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, रिकॉन्सनेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस. 4.5 जनरेशन का है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1.8 माइल. ठीक है. वेरियस लेटेस्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है और एग्जांपल क्या है देख लेते हैं एक बार. 4th जनरेशन हमारा चलता था 70 से 80s तक. एबिलिटी टू स्विच एंड स्विंग रोल्स बिटवीन एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड. एग्जांपल है मिग 29, F-16, मिराज 2000. अब 4.5 जनरेशन आया जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐड हो गई, यूरोफाइटर, टाइफून, राफेल. 5th जनरेशन जेट्स हैं एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज के साथ एड एडवांस वेपन्स है जैसे कि F-22 रैप्टर, चेंगडू J-20. ठीक है. यूएस का चाइना 6th एयरक्राफ्ट बैटल, यूएस और चाइना के बीच में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बैटल बनाने के लिए वॉर चल ही रहा है, प्रॉक्सी वॉर चल रहा है. यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है कि वो अभी 6th जनरेशन फाइटर जेट बना देंगे, दैट इज F-47. चाइना ने दिसंबर 2024 में बोला चाइना फ्लू 2 6th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप दैट इज J-36 एंड J-50. 6th जनरेशन फाइटर जेट्स कैरेक्टराइज किससे होंगे? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज होंगी, अनमेन्ड कैपेबिलिटीज होंगी. नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव. डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है रिलीज ट्रायल्स ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब दैट इज गौरव. लॉन्ग रेंज है 1000 kg. गौरव अचीव 100 किलोमीटर रेंज विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी and development designed and developed by indigenously, that is by Indian owned system. MK2A DUE system. DRDO ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ट्रायल ऑफ MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है इंडियन ओपन एयर रेंज इन कुर्नूल दैट इज इन आंध्र प्रदेश. 4th कंट्री हो गया है आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया हु possess एडवांस लेजर वेपन कैपेबिलिटीज. डेवलप किया है इंडिजिनियसली बाय डीआरडीओ सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज दैट इज इन हैदराबाद. इट कैन डिसेबल ड्रोन्स को डिसेबल कर सकता है, मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को भी. वंस डिटेक्टेड बाय अ रडार इट एंगेजेस टारगेट्स एंड यूजेस एन इंटेंस हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम टू कट थ्रू द टारगेट एंड लीडिंग टू स्ट्रक्चरल फेलियर. लाइटनिंग स्पीड ऑफ एंगेजमेंट, प्रिसीजन एंड कैन हैव लीथलिटी डिलीवर टू द टारगेट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. बीच में से काट के खत्म. सिग्निफिकेंस क्या है ड्यू सिस्टम का? पोटेंशियल टू रिवॉल्यूनाइज द बैटल स्पेस इकोनॉमिक्स. इट कैन रिड्यूस द रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव एम्यूनेशन.
सीधी सी बात है, हम एक्सपेंसिव महंगे महंगे एम्यूनिशंस क्यों करेंगे जब हमारे पास लेज़र टेक्नोलॉजी है। अगर कुछ भी आएगा वो उसको डिटेक्ट करेगा एंड लेज़र से वहीं ख़त्म। एंड ऑल्सो लोअरिंग द रिस्क ऑफ कोलेट्रल डैमेज। काउंटर इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटीज, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स दैन डिसेबल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रडार्स एंड कम्युनिकेशंस विदाउट फिजिकल डिस्ट्रक्शन फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वॉरफेयर। ठीक है। About directed energy weapons, use concentrated energy from electromagnetic or particle technology rather than kinetic energy to degrade or destroy targets. क्या use करता है? Electromagnetic and particle technology. Type है high energy lasers, high power microwave weapons, millimeter waves, particle beams and others. Project Varsha. INS Varsha under Project Varsha to be operational by 26. है क्या? क्लासिफाइड नेवल प्रोजेक्ट है, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज टू डेवलप सिक्योर अंडरग्राउंड बेस टू हाउस अ फ्लीट ऑफ ओवर 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। लोकेशन इसका रहेगा कोस्टल विलेज रामबिली आंध्र प्रदेश में। सिमिलर टू प्रोजेक्ट वर्षा फ्रॉम द ईस्ट, कावर बेस इन कर्नाटक अंडर प्रोजेक्ट सी बर्ड सेफगार्ड द वेस्ट कोस्ट। ईस्ट के लिए हमारे पास वर्षा है, वेस्ट के लिए हमारे पास है प्रोजेक्ट सी बर्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारे एक्सरसाइजेज हैं, दोज वर इन न्यूज़। ये डायरेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग एंड ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है, तो लेट्स सी। एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 प्रीमियर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, होस्टेड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एटलांटा, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेज हैं, ऑपरेशन एटलांटा प्रपोज अ जॉइंट एक्सरसाइज विद इंडियन नेवी। ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली फॉर पीस, स्टेबिलिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, and it operates in the Western Indian Ocean and the Red Sea region. एक्सरसाइज 10 क्लिक 6th एडिशन है इसका, पुणे में हुआ, महाराष्ट्र पुणे में, और ये ईयरली होता है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक बार इंडिया में, एक बार उज्बेकिस्तान में। टाइगर ट्रम्प, द 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प कमेंस्ड इन विशाखापट्टनम कोस्ट। बायलैटरल ट्राई सर्विस इंडिया यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। Aims at developing interoperability conducting HADR operations and for the formulation of standard operating procedures. INI AUKUS 25, Indian Air Force to participate in multinational air exercise in Greece. ये है क्या? It's an annual multinational exercise hosted by Greece Hellenic Air Force. It serves as a platform for air forces to hone their skills, exchange tactical knowledge and strengthen military ties. ओके गाइज, तो ये पार्ट भी हमारा अभी यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट में विल कंटिन्यू इट विद एनवायरमेंट टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।